Good morning, class 7. So, today we will be starting our new chapter, chapter number 6, metals and non-metals. Okay, so these two terms, metals and non-metals, ये terms हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इन terms के बारे में पता है. metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं. Like, अगर हम start करें introduction से, when we talk about metals and non-metals, हम basic element से start करते हैं. Elements are categorized into metals, into non-metals and into metalloids. This we already have studied in class 6. Okay, now metals like calcium, sodium, magnesium, aluminum, these all are metals. There are many more, and out of all the elements present in the periodic table, there are 24 non-metals like carbon, phosphorus, sulfur, etc. These all are non-metals, and one more category of element is there, that is the metalloids, which comes in between the metalloids, जिनमें कुछ properties metals की होती हैं और कुछ properties non-metals की होती हैं. ठीक है, those elements which shows the behavior of sometimes as metals and sometimes as non-metals. So they are metalloids, boron, silicon, germanium, like that. So ये metal elements का जो categorization है, ये bifurcation है, ये हम पहले कर चुके हैं. This chart we already are familiar with, है ना. हम सबको पता है मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं, जिन एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें देयर इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री गिवन. अराउंड 14th century BC, it reveals the during this time reveals the presence of gold put to use by early Egyptians. Early Egyptians used to use this gold, right? Then 3500 BC, their work shows that copper and tin articles of ancient civilization, these two substances were present that time. Then 2000 BC study shows that iron का use होता था वहाँ पे, right? Asians करते थे उसका use. Then there is a term given, metallurgy. Metallurgy means, see, metals जो हम use करते हैं, whether we use iron, whether we use sulfur, any of the metal or non metal, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वो हमें उसी फॉर्म में अर्थ में से नहीं मिलता है. अगर हम मेटल की बात करें, एल्यूमिनियम, तो जैसे अगर आप अपने घरों में देखेंगे, एल्यूमिनियम के बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं. एल्यूमिनियम का आपका प्रेशर कुकर होता है, आपके बहुत सारे और बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, राइट? आयरन के होते हैं, तो वो उसी फॉर्म में आयरन अर्थ से नहीं निकलता है. ठीक है, तो there is a systematic process of obtaining those pure metals. So this is metallurgy. It is a technology and production of metals in the pure form from their ores. Ores होते हैं एक rock form जो अर्थ के अंदर से निकलता है, जिसमें metals होते हैं, right? So they are actually the naturally occurring minerals जो naturally निकलते हैं अर्थ के अंदर से rock form में. ठीक है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं, जिसमें से मेटल्स को हम बाद में निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल का प्योर फॉर्म. सो जो एक्चुअली निकलते हैं वो ओर्स निकलते हैं. ठीक है, उसके अंदर ही मेटल प्रेजेंट होता है, एंड ओर्स आर एक्चुअली अ रॉक फॉर्म, यू कैन से नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, जिसके अंदर से फिर मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दिस होल टर्म इज नोन एज मेटलर्जी. सो मेटलर्जी एक्चुअली क्या है? It is the technology and production of metals in the pure form from their ores. उनके ores से metals को अलग करने का, या you can say extract करने का, या pure form में obtain करने का एक method है. Okay, and how the metals occur? They may be in the free or native state. वो free state में हो सकते हैं. in the pure form like gold, silver, platinum, ये इसी फॉर्म में गोल्ड कंपाउंड फॉर्म में नहीं निकलता है, ये किसी के साथ कंबाइंड स्टेट पे नहीं निकलता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, गोल्ड जब हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो गोल्ड के फॉर्म में ही निकलता है. ठीक है, एंड कंबाइंड स्टेट में कुछ निकलते हैं. जैसे कंबाइंड स्टेट में अगर हम बोलें तो उनमें अर्दी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थ के अंदर से प्योर फॉर्म में तो निकलते नहीं है वो, तो उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. सो दैट इज़ द कंबाइंड फॉर्म. ओके, नाउ मिनरल्स क्या हैं? compounds of various metals found in nature along with earthy impurities. बहुत सारे नेचर में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं
लेकिन उनमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होंगे तो हम उनको मिनरल्स बोल रहे हैं। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, है ना, जैसे ओर्स हैं, वो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स ही हैं जो एक रॉक के फॉर्म में अर्थ के अंदर से निकल रही हैं और फिर उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो देर आर सम कॉमन ओर्स गिवन। ओर्स क्या हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ओर्स, सी ये रॉक फॉर्म दिया हुआ है, वो ऐसे ही किसी भी मेटल के इसके अंदर से हो सकता है हम आयरन निकालें बाद में, सोडियम निकालें बाद में, ठीक है, हमें अभी पता नहीं है इसके अंदर क्या है, ये हो सकता है सोडियम का ओर हो या आयरन का ओर हो। तो यहाँ पे दिया हुआ दिस इज द ओर ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक का ओर है, मतलब ये रॉक फॉर्म है जिसमें जिंक प्रेजेंट है, इसमें से जिंक निकाला जाएगा बाद में। ओके, नाउ मेटल लाइक जिंक है, उसका कॉमन नेम होता है जिंक ब्लेंड। इट्स केमिकल नेम इज जिंक सल्फाइड, जिन जिन केमिकल से मिलके वो बना है, जिंक एंड सल्फर, जिंक सल्फाइड उसका केमिकल नेम है। कॉमनली इट इज़ नोन एज जिंक ब्लेंड एंड इट्स फॉर्मूला इज ZnS, क्योंकि जिंक और सल्फर से वो बना है। इन द सेम वे एल्यूमिनियम का है, इन द सेम वे आयरन के कॉमन नेम दिए हैं, केमिकल नेम दिए हैं और उनके फॉर्मूलाज दिए हैं। सो ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके, सो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट इज दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रीवियसली, हमने ये डिस्कस किया था कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल से टोटली डिफरेंट होती हैं, राइट। लाइक दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ गिवन, ठीक है, ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और दिस इज हाउ मेटल्स आर एबल टू, राइट। फर्स्ट इज लाइक लस्टर है, लस्टर का मतलब होता है कितना ब्राइट है वो, गोल्ड जो होता है ना उसमें गोल्ड लस्टरस होता है, शाइनी होता है, ब्राइट होता है, चमकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो लस्टर मीन्स हाउ शाइनी, हाउ ब्राइट दे आर, दे शो ब्राइटनेस ऑन रिफ्लेक्शन टू लाइट, ठीक है, ये मेटल्स की एबिलिटी होती है दैट दे आर लस्टरस, दे शो ब्राइटनेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। सेकेंड इज हार्डनेस, जनरली ऑल द मेटल्स, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, ओके, दे आर दे रेजिस्ट दी एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो किसी भी टाइप के फोर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बिकॉज वो हार्ड होते हैं इजीली टूटते नहीं हैं या रेजिस्ट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को। मेलेबिलिटी, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेलेबिलिटी मीन्स इफ़ एनी मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जैसे हम आयरन की अगर बात करें तो आयरन तो रॉक के फॉर्म में निकलता है और जब निकलता है अर्थ के अंदर से, बट हमारे घर में देखा है आपने आयरन की कढ़ाई भी होती है, आयरन की छोटे छोटे बर्तन भी होते हैं, और ठीक है, आयरन डिफरेंट शेप्स में मोल्डेड फॉर्म में भी होता है, एंड थिन शीट्स अगर उसके आयरन के ट्रंक्स होते हैं, कब एलमिराज बनाए जाते हैं, डोर्स होते हैं, ठीक है, ग्रिल होती है, तो वो अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट है, थिन शीट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है। सो दिस एबिलिटी ऑफ मेटल्स वेयर द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है अगर मेटल को हम पतली पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं तो दैट इज मेलेबिलिटी, और वो उस कंडीशन में टूटता नहीं। अगर आयरन को हम बीट करके, इफ आयरन इज हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इट विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, इट विल रादर कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अदर प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, अगर हम मेटल्स को या किसी भी एलिमेंट को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे आपने कॉपर की वायर्स देखी जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं, है ना, तो ये क्योंकि मेटल्स डक्टाइल होते हैं इसलिए हम उनके वायर बना सकते हैं, राइट। तो वायर डक्टिलिटी मीन्स अगर हम उनके वायर फॉर्म बना सकते हैं, मेलेबिलिटी मीन्स अगर उनके शीट्स फॉर्म में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हाउ फ्लेक्सिबल, अभी हिंदी में इसको अगर हम बोलें तो कितना लचीला है, मीन्स इट कैन विथस्टैंड द लॉन्गिट्यूडिनल पुल। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो हाउ फ्लेक्सिबल द वायर इज़, अगर हम वायर में कन्वर्ट करें तो कितना फ्लेक्सिबल है, वो टूटेगा तो नहीं जल्दी,
कितना फ्लेक्सिबिलिटी है या कितना लचीला वो है, दैट इज़ कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हेन इट इज़ इन वायर फॉर्म, तो वायर्स अगर आपने देखी होंगी मेटल्स की लंबी लंबी इलेक्ट्रिक केबल्स में भी यूज़ होती हैं, तो वो कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनकी, कितना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी वो लचीली हैं कि वो टूटेंगी नहीं। सो मेटल्स यूजुअली हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोनोरस या सोनोरिटी, सोनोरस या सोनोरिटी मीन्स व्हेन दिस मेटल इज स्ट्रक, सपोज हमने आयरन का कोई बर्तन है, ठीक है, उसको धीरे से किसी चीज़ से मारा, हल्का सा स्ट्रक किया, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस या सोनोरिटी। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सोनोरिटी। आप घर में भी आपके आयरन के बर्तन हैं या आपके एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, उनको हल्का सा स्ट्रक करके देखिएगा, उसमें आवाज़ आती है। कॉपर है ना, उसके बर्तन को स्ट्रक करके देखिएगा, उसमें हल्की सी आवाज़ आती है, तो दैट वो वाइब्रेटिंग साउंड जो उसमें से निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरिटी या सोनोरस। ओके, कंडक्टिविटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड, जो भी अगर उनमें हीट के गुड कंडक्टर हैं तो वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। कंडक्टिविटी मीन्स whether they transmit heat and electricity or not. So generally metals are good conductor of heat and electricity, that is why they are used in electrical appliances. Okay, so आज हम अभी सिर्फ properties of metals जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट टाइम विल डू द डिफरेंस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस सेकेंड वन। ठीक है, उससे पहले आप एक जर्नल रिवीजन करके रखेंगे, जो हम इससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं। हम कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, ये एक जर्नल रिवीजन आप खुद करके रखेंगे। और जहाँ तक मैंने आपको अभी बताया है, इसको एक जर्नल रिवाइज करेंगे। यू हैव टू गो थ्रू दिस table. Okay, thank you.